Chajanaranjana Yamuna Tiravana Chandi Yamuna Tiravana Chandi Jaya Radha Madhava Kunjabi Hadi Kunjabi Hadi Jaya Radha Madhava Kunjabi Hadi Kunjabi Hadi Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivajagacharya Astatarasatasi Simadas Divine Grace Sri Bhakti Vedanta Swami Śrīla Prabhupāda Ki Ananta Koti Vaishnavarinda Ki Śrīla Prabhupāda Ki Gaur Premanandi. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunamilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaha Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashyatya Deshitarine. तो आज से नया लेक्चर शुरू होगा। तो अभी श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव तिथि हमने मनाई परसों, तो उसके ऊपर एक लेक्चर होगा। ये वही चालू करेंगे जो अभी गोवर्धन में हुआ है। कौन प्लेबैक कर रहे हैं? वो अखिलदार प्रभु कर रहे हैं। Rama Rama Hare 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 Krishna. As Vaisheshika Prabhu hinted, this is a bittersweet day. The bitterness is obviously due to the great loss of Prabhupada in our individual lives and for the world. And the sweetness is, Brihad Bhagavatamrita, it is said, if we become mindful of someone whom we miss, then that person is there in some ways. So Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale. Please join me. Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Go Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Yes. Like this. Hare Krishna. Once Srila Prabhupada mentioned that there is one verse in the entire Vedic scripture which is the most important one. One single verse. He chose from the whole storehouse of Vedic knowledge and said, this is the essence. You all, there are a few very learned devotees. First and foremost, I know that Vaisheshika Prabhu's command over verses is just really phenomenal. It is, you can go into the Guinness record for remembering verses, I think. So I will not ask him because he will know. But what would you say if what could be the essence of the Vedic scriptures? Okay, Hare Krishna. तो श्रील प्रभुपाद के तिरुभाव दिवस का ये लेक्चर है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद के अलग अलग शिष्य और हो सकता है कुछ सीनियर डिवोटीज श्रील प्रभुपाद की महिमा का गुणगान हो। तो सर्वप्रथम हम सुन रहे हैं परम पूज्य सच्चिनंदन महाराज से। तो और जैसा महाराज ने मेंशन किया, सबसे पहले वैशेषिका प्रभु भी शायद वहां पर हैं। तो श्रील प्रभुपाद का जो तिरुभाव दिवस है उसको महाराज ने बताया कि बिटर स्वीट मतलब इसमें कड़वाहट भी है और मिठास भी है। खट मिठा बोल सकते हैं, या दोनों ही भाव जुड़े हुए हैं इस दिन से। कड़वाहट है या दर्द है क्योंकि श्रील प्रभुपाद का संग, जो बपू संग, जो उनका उपस्थिति थी, वो अब हमको नहीं मिल पाती, या पूरे संसार को वो संग श्रील प्रभुपाद का नहीं मिल पा रहा है बपू के रूप में। और मिठास भी है। मिठास मतलब एक तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि श्रील प्रभुपाद भगवान के पास वापस चले गए हैं गोलोक धाम में, तो एक वो है। पर एक और जो महाराज बता रहे हैं कि बृहद भागवत अमृत के अनुसार जब आप किसी के बारे में बहुत ध्यान करते हो, सोचते हो, याद करते हो उनको, तो वो एक प्रकार से आपके पास किसी न किसी रूप में उनकी उपस्थिति या उनकी प्रेजेंस आपके साथ रहती है। फिर महाराज बता रहे हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि एक ऐसा श्लोक है सारे वैदिक शास्त्रों में, जो हम बोल सकते हैं कि सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है। जितने भी वेद पुराण उपनिषद हैं, सबका एक निचोड़ यदि बोला जाए तो एक श्लोक है जो महाराज यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने बताया था एक बार। और महाराज बता रहे हैं वैशेषिक प्रभु जो इस्कॉन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण के मेन इंचार्ज बोले, या जो पूरा पुस्तक वितरण को देखते हैं पूरे इस्कॉन में,
वो भी वहाँ पर हैं। और वैशेषिका प्रभु के हमने पहले भी कुछ लेक्चर सुने हैं, या जिन्होंने भी सुने हों, तो हमको पता है वैशेषिका प्रभु को संस्कृत के श्लोक बहुत कंठस्थ हैं, और हर चीज में वो अथॉरिटी कोट करते हैं जब भी उनके लेक्चर्स होते हैं जनरली। तो महाराज वो अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके बारे में, गुरु भाई हैं महाराज के, और उनका उस चीज के लिए महाराज उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और महाराज ये पूछ रहे हैं ऑडियंस से, जो भी भक्त हैं, कि आप में से कोई बताना चाहेगा वो कौन सा श्लोक है, क्या आप लोग सोचना चाहेंगे कौन सा वो श्लोक हो सकता है जो सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है। आगे सुनते हैं। Srinvatam Svakata Krishna. You must be a disciple of Vaisheshika Prabhu. Our devotee, your good name? Patitam Pavan Prabhu has marked the verse. Yasya Deva Parabhaktir Yata Deva Tata Guru Tasyaita Katita Hyarta Prakashante Mahatmana. It's from the Svetashvatara Upanishads, text 23, and it says, only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the Spiritual Master are all the imports of the Vedic knowledge automatically revealed. Please take note, you need to have a dual faith. I don't know if this is the right English way. You have to have faith in two, in the Spiritual Master and in the Supreme Personality of Godhead. And then something can take place which is so important on the genuine path of Krishna consciousness. A revelation can take place. Revelation means from an inaccessible place something is given to you. That is a revelation. No, it is, revelations are independent of the one to whom they are revealed, in the sense that the one who has a revelation has not done anything to make it happen. It is given to him as a gift from above. No? My dear devotees, you can study the books, you can do many things, but the full understanding will blossom in your heart only when it is given to you. And that is, it will be given to you when you have placed your faith in the Spiritual Master, in the Supreme Personality of Godhead. So Srila Prabhupada marked this as the essence of the entire body of spiritual knowledge. There's another verse in the Bhagavatam which highlights this again. It is like this. Naisham matistavat urukramangrim sprisyat yanata pagamo yadata mahiya sampado rajobhishekam nishkinchananam navrinitayavat. This will sound very drastic for the Western mind. And it sounded very, very drastic to Hiranyakashipu when Prahlad Maharaj told him how the spiritual knowledge which he had, or spiritual realization, is possible. Please listen with curious attention. Unless, or you could say only if,
they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava who is completely freed from material contamination. Unless they do this, persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. थैंक यू। तो जो श्लोक है, जो सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, वो फिर एक भक्त ने बताया, यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु। ये हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स में और उनकी उनके पुस्तकों में भी इस श्लोक को हर बार श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं। तो यहाँ पर बात है कि किस व्यक्ति को वैदिक शास्त्रों का पूरा निचोड़ वास्तविकता में समझ में आ सकता है। और जहां पर जब ये बात हो रही है कि वास्तविकता में समझ में आ सकता है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक पुस्तकी समझ नहीं कि हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा है और हम शास्त्रों के निचोड़ को एटलीस्ट ऊपरी ऊपरी तरीके से समझ गए हैं, हम किसी को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हमको उसका अभी भी रियलाइजेशन नहीं है, अभी भी हम अनुभूति के स्तर पे नहीं आए। तो वह व्यक्ति जिसको भगवान के ऊपर और गुरु के ऊपर इम्प्लिसिट फेथ, अटूट श्रद्धा होती है, उस व्यक्ति को ही वैदिक शास्त्रों के जो जो वैदिक शास्त्रों का जो मैसेज है या जो निचोड़ है वो समझ में आएगा। न केवल थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बोले या एक सिर्फ दर्शन के रूप में, परंतु रियलाइजेशन के रूप में। और यहाँ पर एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि किस प्रकार से जो भक्ति की हमारी प्रोसेस है, ये भक्ति की प्रोसेस एक पर्सनल प्रोसेस है। भक्ति की जो प्रोसेस है वो एक पर्सनल प्रोसेस है। हम भक्ति में हम बोलते हैं डिवोशनल सर्विस, मतलब भक्ति भाव के साथ सेवा। और जहां पर जैसे ही हम सेवा बोलते हैं तो सेवा मतलब किसकी सेवा, किसी व्यक्ति की सेवा की बात हो रही है, राइट। हम सिर्फ कोई पत्थर की या किसी ज्योति की सेवा नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स हैं और थॉट्स हैं और हमारे कुछ लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं, उसी प्रकार से हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो एक व्यक्ति हैं और उनकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ लाइक्स हैं, कुछ डिसलाइक्स हैं। तो भक्ति की जो प्रविधि है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि एक यांत्रिक रूप में या मशीनीकरण के रूप में हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। जैसे हमारी भी प्रोसेस है, हम सब चीजों पर टिक लगा सकते हैं, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ टिक लगाने से जरूरी नहीं है कि हम भक्ति में गहराई में उतर पाए, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से डील कर रहे हैं। वो व्यक्ति हैं कृष्ण, गुरु और कृष्ण। तो ये जो रियलाइजेशंस हैं भक्ति में, ये सिर्फ हमारे एफर्ट्स डालने से नहीं आते हैं कि हमने प्रयास किया, उससे नहीं आते हैं। वो जरूरी है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमारी तरफ से मेहनत जरूरी है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जब तक
ऊपर से रियलाइजेशन दिए नहीं जाते, मतलब हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, या हमारा हृदय वहां तक कभी पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऊपर से जब वो चीज हमको दी जाती है, जिनके पास वो चीज होती है, तब हमारे पास वो चीज आती है। तो जो पूरा अभी ये दामोदर लीला का भी वो है, 2 उंगली, दो तो एक उंगली में प्रयास और एक उंगली भगवान की कृपा, या उनकी मर्सी। तो सिर्फ हमारा प्रयास ही सफिशिएंट नहीं है, भगवान की कृपा, गुरु कृष्ण की कृपा आवश्यक है वैदिक शास्त्रों को या फिर भक्ति को गहराई से समझने के लिए, रियलाइजेशन डीपर होने के लिए। तो इसलिए हम भक्ति में निर्भर हैं, हम डिपेंडेंट हैं। वैसे भी हम देखें, जीवात्मा हमेशा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। सिर्फ मिथ्या अहंकार के आवरण के कारण उस चीज, और वही जब हम अप्रोच भक्ति में लेके आते हैं, जो हमारा नॉर्मल मिथ्या अहंकार का अप्रोच होता है जीवन जीने का, वही जब हम भक्ति में भी लेकर आते हैं, तो हमको लगता है हमारे बलबूते पे हम कर लेंगे, हम बढ़ जाएंगे, यू नो हम गहराई में उतर जाएंगे, या हम चैंटिंग को कर लेंगे, या हम हियरिंग को कर लेंगे। बट एक्चुअली हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो भक्तिमय प्रयास होना चाहिए, कि हमारी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं, जानते हुए कि फाइनल की तो भगवान के हाथ में है। जब वो प्रसन्न होंगे, जब ही वेन एवर ही फील्स, तो उनके हाथ में फाइनली। और भगवान, हमको पता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, उनको कोई फोर्स किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन जब कोई भक्ति से अप्रोच करता है तो बहुत इजीली प्लीज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति की जो प्रोसेस है वो यांत्रिक ना होकर भक्तिमय तरीके से अप्रोच करें, तो रिजल्ट्स फास्ट मिलते हैं। तो एक तो महाराज ने ये बताया कि शिला प्रभुपाद ने ये दिया है श्लोक, जिससे देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, ये वाला वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है। और एक और श्लोक अ, जो यहाँ पर जितना ने भी कोट किया है, महाराज ने बताया 7532, 7वां स्कंद भागवतम का 5वां अध्याय 32वें नंबर का श्लोक, जहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हिरण्यकशिपु को किस प्रकार से भगवान की भक्ति को कोई समझ सकता है, या भगवान को कोई समझ सकता है। तो महाराज ने बोला कि स्पेशली पाश्चात्य देश में ये कॉन्सेप्ट, ये जो आइडिया है लोगों को अ, बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगा। और पाश्चात्य देश के, इवन भारत में भी वो कल्चर आजकल स्पीड से खत्म होता जा रहा है। और ये श्लोक का जो अर्थ है, जो मेरे को रफली याद आ रहा है, कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु को कि यदि भगवान की सेवा में या भक्ति में आगे बढ़ना है, तो भगवान के शुद्ध भक्तों के जो चरण कमल की जो धूल है, उसको हमारे पूरे शरीर में, उससे हमको नहाना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेशन या बताइए। 752। यही है। या थैंक यू। तो प्रहलाद महाराज यहाँ बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु को
जब तक भौतिकवादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं लगाते जो भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। 7532 आगे आगे freed from material contamination. Unless they do this, persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way, smearing the dust upon the body, can one be freed from material contamination. So what does this mean? Does this mean to take it, the dust like this? Oh, I forgot some places. What does this mean? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains. He says, what does smearing our bodies with the dust of a Vaishnava mean? Remember, that's the only way in which one can become Krishna conscious. He says, this means washing ourselves in the good example of their Vaishnav behavior and their knowledge. Then only our intelligence will touch the Lord's lotus feet. तो महाराज बता रहे हैं कि क्या मतलब है कि एक शुद्ध भक्त के चरणों की धूली या रज को अपने पूरे शरीर में लगाने का। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट कर रहे हैं। एक छोटा सा ही पाठ पढ़ा है, तो मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, लेकिन महाराज जो बता रहे हैं कि मतलब इसका लिटरल मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने पूरे शरीर पे चरण मतलब धूली को लगाएं। वो एक तरीका हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आचरण जो वो प्रस्तुत कर रहे हैं और जो वो भगवान की भक्ति का ज्ञान हमको प्रदान कर रहे हैं, उसमें अपने आप को निलाना, उसमें उनके उस आचरण से सीखना, उनका जो एक प्रकार से बोलें तो वाणी के थ्रू जो ज्ञान आता है, जो भक्ति का जो हमको विज्ञान समझाते हैं, वो उन दोनों में अपने आप को निलाना पूरी तरीके से। हम आगे सुनते। Then only our intelligence will touch the Lord's lotus feet. The angle is too, now it won't fall. So, have you understood what is the process? Wash
yourself with the example, study the example of a pure Vaishnava and the knowledge. Then only will you be able to leave with your intelligence the confines of material understanding, the prison of perception in which you're presently locked up, and touch or reach or access Krishna as he is. By the way, it's always good to be in contact with Braj Raj. That is also very good. So, such तो दो चीज जो महाराज फिर से रिपीट करके समझा रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्तों के उदाहरण को देखना, इस प्रकार से वो भक्ति का जीवन व्यतीत करते हैं, उनका वो संग, उस उदाहरण को ध्यान पूर्वक देखना और ज्ञान प्राप्त करना, जो ज्ञान वो हमको देते हैं, तो बेसिकली श्रवणम। तो इस प्रकार से उनके पर्सनल लाइफ को और उनसे जो नॉलेज मिल रहा है उसके माध्यम से हमको एक वो बुद्धि प्राप्त हो सकती है जिस बुद्धि से हम भगवान के तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो एक प्रकार से यदि वो शुद्ध भक्त का बीच में उपस्थिति ना हो या उनकी प्रेजेंस नहीं हो तो हमको वो कभी भी बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जिससे कि हम भक्ति में अग्रसर हो सकें। तो हम हमारे भौतिक बुद्धि में ही हम बंधे हुए रहेंगे। उससे अपने आप को यदि मुक्ति हम चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, तो हमको ये दो चीज करनी है। शुद्ध भक्त को उनकी लाइफ को अच्छे से देखना, समझना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना। आगे सुनते हैं। It's always good to be in contact with Braj Raj. That is also very good. So, such a devotee, where this works, is described by Prabhupada in the purport to the 12th chapter of the Gita. A devotee of this high caliber, does not live on the material plane. He lives in Krishna. He lives in Krishna. So, placing our faith in such a devotee means let us study his behavior as he walked through life. Let us listen to his words as he spoke or as he has written this in his written things. My dear devotees, I think many of those talented speakers who come after me will give us snips and snippets of Srila Prabhupada's words of knowledge. I want to leave this for others. I think it's every year it's done like this, at least. I would like to draw your attention to Prabhupada's outstanding example. I once asked Shruti Kirti, is his name Shruti Kirta? Please help me. Shruta Kirti Prabhu. In your dealings with Prabhupada, was there a difference between Prabhupada before the door and behind the door? What I meant is, was there a difference between how Prabhupada presented himself in the words of Krishna consciousness to the world and what he did in a private when no one saw him? I mean, the servant will have seen him. That is behind the locked door of his room. And Shruta Kirti thought for a while.
he said in terms of following what he said, there was no difference. Only the Prabhupada in his room was very kind. He gave me a donation when my child was born. I should buy him some golden necklace. Yes, thank you. And very human, I mean human always, but very kind and personal. And of course, when he sat on the Vyasasan, he presented and so on. So दो चीजें जो महाराज ने बताई, तो ध्यान पूर्वक से शुद्ध भक्तों की उदाहरण को, उनकी लाइफ को हम ध्यान से देखें, अध्ययन करें, उससे सीख लें, और उनसे जो ज्ञान, तो श्रील प्रभुपाद ने जैसे इतनी सारी पुस्तकें उनको दी हैं, तो उन पुस्तकों के अध्ययन के माध्यम से वो ज्ञान, या उनके प्रवचनों के माध्यम से वो हम ज्ञान प्राप्त करें। तो महाराज बता रहे हैं कि मतलब मेरे बाद कई सारे दूसरे वक्ता डिवोटीज भी आएंगे जो श्रील प्रभुपाद के ने जो ज्ञान दिया है वो छोटे छोटे कई लीलाओं के माध्यम से वो लोग उसको बताएंगे। तो लेकिन महाराज यहाँ पर कुछ एक्सचेंज बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद के जो पर्सनल सर्वेंट थे, जिन्होंने काफी सालों तक प्रभुपाद की सेवा करी, श्रुत कीर्ति प्रभु। तो महाराज बोले कि मैंने एक बार उनसे ये पूछा, और ये पूछा कि श्रील प्रभुपाद का, कृष्ण की आपने इतनी पर्सनल सेवा करी है, तो क्या आपने प्रभुपाद की लाइफ में ये देखा क्या कि वो बाहर जो मतलब एक दुनिया के सामने पेश आते थे वो एक थे, और जो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, वो एक दूसरी थी। तो क्या प्रभुपाद की पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ दोनों समान थे, सेम थे, या दोनों में कुछ अंतर था? तो श्रुत कीर्ति प्रभु महाराज बता रहे हैं कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा, और उन्होंने बताया कि जहां तक जीवन जीने की शैली है या जो शिक्षाएं हैं, तो प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं दी हैं पूरी दुनिया को, वो शिक्षाएं वो खुद भी अपने जीवन में पूरी तरीके से पालन की पर्सनल लाइफ में, मतलब वहां पर कोई अंतर नहीं है। तो प्रभुपाद भी जैसे प्रभुपाद भी चैंट करते थे, प्रभुपाद भी अपनी पुस्तकों को लिखते थे या वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते थे। एक प्रकार से जो भक्ति की शिक्षाएं प्रभुपाद बाहर देते थे, वही भक्ति का जीवन उनका पर्सनल भी था पूरी तरीके से, उसमें कोई अंतर नहीं था। सिर्फ अंतर यहाँ पर यह है कि प्रभुपाद जब रूम में रहते थे या उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें वो और बहुत ही दयालु थे, उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही दयालु थे, और कई सारे ऐसे पर्सनल एक्सचेंज प्रभुपाद करते थे अपने सेवकों के साथ। उसमें से एक प्रभु महाराज ने बताया कि श्रुत कीर्ति प्रभु ने बताया कि जब उनको बेटा हुआ था, तो ये उनकी बुक में भी आता है। हाँ, आई थिंक उन्होंने एक बुक लिखी है, टाइटल शायद बहुत अच्छे से याद नहीं मुझे, बट ऐसा कुछ शायद व्हाट इज द डिफिकल्टी करके एक बुक है। तो जब उनको बेटा हुआ तो प्रभुपाद ने उनको $50 दिए थे, और प्रभुपाद के एक और पहले के भी एक सेवक थे, जहां तक उनका नाम मुझे याद आ रहा है, नंद किशोर प्रभु। तो पहले नंद किशोर प्रभु सेवा करते थे, और उसके बाद शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद के पर्सनल सेवक बने थे। तो जब शुद्ध कीर्ति प्रभु वो बेटा हुआ, उन्होंने बताया प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद ने कहा मेरा वो ब्रीफ केस लेकर आओ, और उसमें से एक नोट, मतलब $50 का एक
बिल निकाल के और उनको दिया, और उसके पहले उन्होंने बोला नंद किशोर को भी बुला के लाओ, और नंद किशोर प्रभु को बुलाकर प्रभुपाद ने उनको भी $50 दिए कि आपको भी बेटा हुआ था, तो ये आपको भी मैं देना चाहता हूँ। तो वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन एनीवे, तो वो बता रहे हैं कि बहुत प्रभुपाद बहुत पर्सनल थे उनकी डीलिंग्स में। मतलब व्यास आसन से जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद एकदम मतलब इन्होंने देखा ना, एक आचार्य के रूप में शास्त्रों का ज्ञान बांट रहे हैं, पूरी दुनिया को भक्ति, कृष्ण भक्ति सिखा रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी वही था, प्लस एक पर्सनल एस्पेक्ट, एक स्वीट एस्पेक्ट और भी जुड़ा हुआ था। और एक कुछ चीज महाराज ने बोली थी पहले। तो शुद्ध भक्तों का आचरण, शुद्ध भक्तों से ज्ञान, और एक कुछ चीज महाराज ने बोली थी कि ब्रज की रज के टच में रहना भी बहुत अच्छा है। हम आगे सुनते हैं। When I saw Srila Prabhupada's example in Schloss Rettershof, he stayed with us for a time which felt like eternity. I don't really know, it must be 2 weeks or so, really long in Germany. Because of doing his BBT work, translating from English to German, devotees were so kind to allow me to sit before his door and do my translation or editing or whatever, or proofreading before the door, and remember the sometimes energetic German devotees walk, tread like an angel here, don't make such noise, and so on. So I was there, and I had an opportunity, being very curious, to study Prabhupada behind the door. I often heard him singing in his room, singing. It was a double sound isolated door. I don't know all the things he sang. Some I recognized, some bhajans, and I opened the first door. There were 2 doors, so the first door. He was often singing, my dear devotees. He lived in Krishna. He was in Krishna. One time I saw him coming out of his door. It was during the afternoon when the majority of our temple devotees were either sleeping or were on Sankirtan, so it was very peaceful. And my dear devotees, who can forget Prabhupada when he was private? He just moved out of his room. His face was very totally absorbed. He was very erect. I saw his eyes were moist. Moist means wet with with some deep thought. And he would walk slowly, and he really, I've never seen a person move like this, with a certain graciousness. If I would have been able to, I always wanted to lie down on the floor and see if his feet touched the floor, but then I would have disturbed him with this unusual position. So I controlled myself. He was very absorbed. Yeah. तो श्रील प्रभुपाद के बारे में बता रहे हैं कि महाराज अपने पर्सनल अकाउंट दे रहे हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता के 12 चैप्टर के एक तात्पर्य में कि
एक जो शुद्ध भक्त है वो एक भौतिक धरातल पे नहीं रहते हैं, परंतु ऐसे भक्त एक्चुअली कृष्ण में रहते हैं। उनकी जो चेतना है वो पूरी तरीके से कृष्ण में लगी हुई है। दिख रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं एक्सटर्नली, जो चेतना है वो कृष्ण भावना भावित है पूरी तरीके से। तो उसका एक पर्सनल अकाउंट महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक बार जर्मनी भी आए थे और अबाउट 2 वीक्स के लिए, 2 सप्ताह के लिए प्रभुपाद जर्मनी में थे। और जर्मनी में मान बोल रहे हैं कि मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली थी क्योंकि प्रभुपाद की इंग्लिश पुस्तकों का जर्मन में या तो ट्रांसलेशन करना या प्रूफ रीड करना या एडिट करना। तो महाराज जो है प्रभुपाद के गेट के बाहर ही रहते थे। और उस समय महाराज ने अब देखा कि जो शिला प्रभुपाद के रूम से मतलब ज्यादा समय तक प्रभुपाद जो है भजन गाते थे। ये हमने गुरु महाराज से भी सुना है। महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जो है वैष्णव सॉन्ग्स हारमोनियम पे गाते थे। तो महाराज शशिनंदन महाराज भी बता रहे हैं यहाँ पर कि बहुत मतलब ज्यादा समय तक प्रभुपाद जो है भजन गाते थे। पूरी तरीके से जो उनकी जीवन है, प्राइवेट जीवन जो है, पर्सनल लाइफ, वो कृष्ण में पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित थी या कृष्ण में ही पूरी चेतना संलग्न थी। और भी महाराज बता रहे हैं, टाइम हो रहा है तो जस्ट एक और आगे बताया कि एक बार प्रभुपाद दोपहर में रूम से बाहर आए, उस समय पूरा मंदिर खाली था और सिर्फ एक सिंपल सा एक्ट था कि प्रभुपाद चल रहे थे, मतलब उनकी प्रेजेंस बता रहे हैं, उनकी प्रेजेंस बता रहे हैं महाराज कि जब प्रभुपाद रूम से बाहर आए तो मतलब वो एक एक वो डिस्क्राइब करना, वो विवरण देना भी मतलब ऐसा लग रहा है शब्द उसको पकड़ नहीं सकते। वो जो जो प्रेजेंस थी प्रभुपाद की वो इतनी पावरफुल थी। मतलब उनकी आंखों में बहुत गहरे इमोशंस थे, उनके एकदम शरीर पूरा सीधा था। और ऐसे पहले कई डिवोटीज ने बताया कि जब प्रभुपाद चलते थे तो ऐसा लगता था कि उनके जो चरण है वो जमीन को छू ही नहीं रहे। मतलब एक बहुत ही रॉयल रीगल प्रेजेंस, एक इस आध्यात्मिक प्रेजेंस। बिल्कुल उनको उनको देख के लगता था कि मतलब कृष्ण में पूरे तरीके से अब्सॉर्ब्ड हैं। ये कई कई डिवोटीज ने बताया जब प्रभुपाद ने एक बार पानी पिया तो उसका क्या उनका अनुभव था, या प्रभुपाद सीढ़ियों से नीचे उतरे तो वो क्या अनुभव था। तो चूंकि प्रभुपाद की कॉन्शियसनेस कृष्ण में पूरे तरीके से अब्जॉर्व थी, तो वो प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि कोई व्यक्ति जस्ट एक ऑन लुकर भी देखकर एकदम स्ट्रक हो जाए। मतलब कोई व्यक्ति जस्ट ऐसे देख रहा है, क्योंकि हमने वो कभी ऐसी प्रेजेंस महसूस नहीं करी है। तो जो जो प्रेजेंस प्रभुपाद की होती थी पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित, वो एकदम टच करती थी, वो एकदम थंडरबोल्ट की तरह होती थी। या उनकी आईज, कितने डिवोटी से बताते हैं कि जस्ट उन्होंने मुझे देखा और वो पूरा पेनिट्रेट कर दिया, मेरी सोल को देखा और मेरे सारी मेरे ऐसा मुझे लगा कि मेरे बारे में सब जानते हैं। और ये मतलब रैंडम नहीं है कि एक आध किसी ने बताया, ऐसे कितने सारे भक्तों का ये अनुभव है शिल प्रभुपाद को लेकर। मतलब कुछ तो अलग था, उनकी चेतना कहीं ना कहीं तो बहुत हायर प्लेन पर फिक्स थी, जो डिवोटीज महसूस कर रहे हो। और वही चीज यहाँ पर महाराज भी जस्ट उनका एक छोटा सा वॉक, छोटा सा विवरण उन्होंने दिया कि कितना वो प्रेजेंस पावरफुल था प्रभुपाद का। ओके, तो यहाँ पर टाइम हो गया है, थोड़ा सा ओवर टाइम हो गया है इनफैक्ट। सो शेयरिंग हम शुरू करते हैं, जिनका भी आज टर्न है आप लोग प्लीज करिए।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। या धन्यवाद, आज प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अ, आज के इसमें मतलब जैसे महाराज बता रहे थे सचिदानंद स्वामी महाराज की अ, कि जैसे मतलब ये आचार्याज और वैष्णवाज, ये जो प्योर डिवोटीज हैं, जो वो बोलते हैं, मतलब वह जैसा जैसे वो प्रचार करते हैं, जो वो कहते हैं, वो उनके लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और उनकी लाइफ में दिखता है वो। तो इट्स सो जेन्युइन, मतलब सीइंग स्पेशली, मतलब मेरे को जो अट्रैक्टिव लगा था इस्कॉन में, व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इस्कॉन, सो मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव लगा था कि जो जो वो बोल रहे हैं वो खुद अपने जीवन में भी पाल रहे हैं, जीवन में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो वो बहुत, मतलब एक ऐसे भी, मतलब वो जेन्युइननेस दिखती है, मतलब वो झलकती है। जब जो कुछ मतलब बोलता कुछ है और करता कुछ है, तो वो बहुत वो अपने आप, मतलब वो दिखता है कुछ समय में, या मतलब पहले नहीं समझ में आता हो, पर कुछ समय में वी कैन अंडरस्टैंड, कोई भी पर्सन समझ सकता है। बट जैसे इस्कॉन में मैंने स्पेशली ये देखा कि जो भी प्योर डिवोटीज या जो भी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, वो जो करने की कोशिश करते हैं, वो मतलब वो जो बोलते हैं वो खुद भी करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत जेन्युइन, ऐसा लगता है कि कितना जेन्युइननेस है उसमें। और उसके लिए फिर लगता है कि हाँ, मतलब ये प्रोसेस, इससे हम रियली, मतलब हम सही जगह जा रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हमने सही प्रोसेस को लिया है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा इंस्पायरिंग हमेशा से लगता है। और जो आज ये पॉइंट आया, जैसे महाराज ने कहा कि श्रीला प्रभुपाद व्हाट ही यूज्ड टू, मतलब से ही यूज्ड टू प्रैक्टिस इन हिज ओन लाइफ, मतलब इट वाज नॉट डिफरेंट, मतलब दो डिफरेंट चेहरे नहीं थे उनके। तो वो मुझे बड़ा बड़ा वो लगा कि हाँ, एज अ श्रीला प्रभुपाद मतलब फॉलोअर्स, हम सबको भी वो कोशिश करना चाहिए। मुझे लग रहा था, मुझे पर्सनली अपने जीवन में ये कोशिश करना चाहिए कि मैं जो भी कर पाऊं या जो नहीं कर पाऊं, उसको मैं मतलब मतलब अंदर से भी फील करूं और शेयर करूं वो, या शेयर नहीं करूं तो एटलीस्ट फील करूं, और अपने आप को ज्यादा ना दिखाऊं, मतलब जो है स्थिति, वो मेरी स्थिति है, वो मैं समझूं भी और आगे बढ़ूं उसमें। और एक पॉइंट शेयर करना था, आई जस्ट, इट स्किप्ड मी फ्रॉम माय माइंड। आई जस्ट रिकॉल प्रभु एंड शेयर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। ओके, और किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, दंडवत प्रणाम। Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, for all glories to all the devotees. प्रभु जी, जैसे जैसे आप ट्रांसलेट कर रहे थे, नाइस ट्रांसलेशन, तो मुझे एक रियलाइजेशन हो रहा था कि भगवान के बारे में या उनके रहस्य को समझने के लिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, और उनके भक्तों को समझने के लिए भी हमें भक्तों का संग करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, और उस रहस्य को समझने के लिए हमें डेफिनेटली एक फुल टाइम जो है उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा और पूरी तरह से समझना पड़ेगा उस रहस्य को। जैसे मैं अपने आप को सोच रहा था कि ह्यूमन बॉडी का तो एज अ डॉक्टर मुझे पता है कि लिवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे काम करता है, लेकिन भगवान से कम्युनिकेट कैसे किया जाए है, उस सच्चाई को, जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, उसको कैसे समझा जाए, और वो नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी? वो भगवान के भक्तों से मिलेगी। जैसे जैसे महाराज प्रभुपाद के बारे में बता रहे थे, उनकी मोमेंट्स के बारे में बता रहे थे, उनकी फीलिंग्स के बारे में बता रहे थे, और उनकी इंटरनल जो फीलिंग्स थी उनके बारे में भी वो डिस्क्लोज कर रहे थे, बता रहे थे हमें। तो मैं सोच रहा था कि हमें उस रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है, और उस रहस्य के जानने के लिए हमें
एक रिलेशनशिप रखना पड़ेगा भगवान के भक्तों के साथ, और भगवान के साथ तभी हो पाएगा जब हम भगवान के भक्तों के साथ रखेंगे। तो ऐसा मन में आ रहा था कि ज्यादा से ज्यादा समय हमें भगवान के भक्तों के साथ बिताना चाहिए, ताकि हम उस सच्चाई को, उस नॉलेज को पूरी तरह से समझ पाए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। Yeah, thank you so much, bro. Very nice point. Correct. भगवान के भक्तों के थ्रू ही भगवान तक वो रहस्य क्लियर हो सकता है। वेरी नाइस, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। यस प्रभु, मंगल प्रभु। धन्यवाद प्रभु। शिला प्रभात की जय गुरु महाराज की जय। प्रभु, आज की क्लास का जो मेरे लिए जो इंस्पिरेशनल पॉइंट था वो आ, एक सेकंड। यस, तो जो इंस्पिरेशनल पॉइंट था प्रभु वो यही था कि जस्ट मिनट प्रभु, जस्ट मिनट, कि आ, जो अभी हमारी पहले की क्लासेस में भी जो थीम में आया था कि ये जो भक्ति है ये अर्न नहीं होती है, ये रिवॉर्ड होती है, अवार्ड होती है। तो जो प्रयास है वो उस मर्सी जो गुरु से आएगी, और जिस मर्सी से हमको भक्ति मिलेगी, वो डीप रियलाइजेशन मिलेंगे, नॉलेज ही नहीं केवल, वो भक्ति का वो जो रिवॉर्ड होगी, वो जो अवार्ड होगी, उस मर्सी को अट्रैक्ट करने के लिए प्रयास हो सकते हैं। और वो उसका मतलब डीपर मीनिंग, मतलब जो ये जो समझ में आ रहा था कि जो भक्त हमारे जीवन में है, जिनसे हमें भक्ति मिली है, जिनकी वजह से भक्ति टिकी है, जिनसे भक्ति बढ़ रही है, उनको प्लीज करके और उनकी वो मर्सी, उनकी वो ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करें। और वो उनको प्लीज करने का जो तरीका जो आगे बताया कि मतलब जो बिहेवियर है वो वैष्णव बिहेवियर हो, और जो जो बताया जा रहा है उसको जीवन में उतार के उसको जिए, एंड बाय दैट दे विल प्लीज, एंड उनके फिर हार्ट से वो ब्लेसिंग्स आती हैं, जिससे वो रियलाइजेशन और वो अटैचमेंट आता है। तो तो वो चीज मुझे लग रही थी कि मेरे प्रयास उस मर्सी को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए हो, जिससे कि मैं इस भक्ति में और डीपर उसमें जा पाऊँ। थैंक यू। Thank you so much, bro. Yeah, efforts to receive the mercy. Thank you. Okay, 2-3 मिनट और है हमारे पास। हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज एक्सेप्ट देख माय मेरा। ऑल ग्लोरीज टू प्रभु जी। ये जो प्योर डिवोटी के संग और उनके आचरण को देखने की बात थी, उससे मैं बस ये सोच रहा था कि वो उनका जो आचरण होता है, मतलब मैं अगर कुछ महा गड़बड़ करूं, गलतियां करूं, कुछ भी करूं, तो उन लोगों की दृष्टि कैसी होती है, जो उसमें दृष्टि में करुणा होती है, वो जजिंग ब्लेमिंग नहीं होती। वो जानते हैं कि अरे एक व्यक्ति किस तरह से जूझता है भौतिक देहात्म बुद्धि में कैसे जूझता है अपनी इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, और उसके बहाव में कैसे बह जाता है असहायता से, कैसे कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है, पर ये फिर भी ट्राई कर रहा है, पर कोई बात नहीं, ट्राई कर रहा है पर फेल हो गया है। ऐसा दृष्टिकोण रहता है, चलो उसको मदद करो, कैसे उसको आगे ले जाओ। तो प्रोजी मुझे लग रहा है कि यही एक एक चीज अगर ये मेरे जीवन में हो सके, अपने सब संबंधों में हो सके, खास करके अपने पत्नी पति बच्चों, जो निकटतम संबंधी हैं, निकटतम भक्त हैं जिनके साथ सेवा करते हैं, ये दृष्टिकोण आ जाए अगर,
तो ये सबसे बड़ी वरदान जो हो सकता है उनको, उनके आचरण को फॉलो करना जो है, उसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं मेरे लिए देख रहा हूँ कि इस तरह अपने संबंधों को देखें प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण। Yeah, thank you so much, bro. Yeah. Nice point. Yeah. Okay, 7:58. और कुछ? 2 more minutes. प्रभु एक पॉइंट और शेयर करना था मुझे। Yeah. Hare Krishna. अ, जो आपने आखिरी में कहा था कि कैसे लाइक ये प्योर डिवोटीज कैसे एम्पावर्ड होते हैं, हाउ दे नो आवर हार्ट्स, मतलब जो हमारी लाइफ में चल रहा है, जो हमारे हाथ में है, हाउ दे रेसिप्रोकेट, मतलब वो कैसे हमको रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसे हमको शेयर, मतलब हमको बताते हैं किसी भी माध्यम से। जैसे मैंने बहुत, मतलब सब डिवोटीज ने देखा हुआ है कि when they pray for something earnestly, or when they really desire something, मतलब कुछ वो कुछ मिजरी है उनकी लाइफ में, उसके लिए कुछ पर्सनली वो लोग कुछ बुक रीडिंग करना चाहते, तो बुक का जैसा पेज खोलते तो वही मिलता है, मतलब वही वो उसी से मतलब रिलेटेबल मिलता है कुछ रीडिंग के लिए, या कुछ 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 ऐसा वो होता है, गुरु महाराज से रेसिप्रोकेशन मिलता है, या श्रील प्रभुपाद से, मतलब इस तरह से बुक रीडिंग में मिलता है, तो या इयरिंग में मिलता है, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, तो उससे हमको कुछ ऐसा पार्ट होता है कि हमको जब हम रियली सिंसियर और देखते हैं कि हाँ ये चीज हमारे लिए कही गई है उसमें, तो मैंने मतलब जब आप बता रहे थे इस बारे में, तो मुझे यही लग रहा था कि सच में मतलब वी ऑल कुड रियलाइज दिस, कि हम सबको रियलाइजेशन है ये चीज का कि whenever we were in any misery, or we want any questions answer, so we get in this way by hearing or reading or direct message from our मतलब seniors. तो यदि हम उसको देखते हैं, मतलब हमारी आंख खोल के हम उसको समझना चाहें, तो हमको मिलता है मतलब वो मैसेज, तो और उसको लेने लेने के लिए वो होना चाहिए, मतलब अंदर से रेडीनेस होनी चाहिए कि हम वो ले और हमारी लाइफ में उतरे। थैंक यू प्रभु, सॉरी 1 मिनट ऊपर हो गया। Thank you. Yeah, thank you so much. Nice point. Okay, so time is up. So we'll close here. Thank you all so much for your participation and presence. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupada.